Hello, all, and welcome to this week's Legal Affairs. We will cover and see what has happened from October 31st to November 6th. Now, this is our Achievers batch. We also have started a revision batch, so you can please go and check out our latest batches. Anyhow, you'll always get mock tests, you'll get the study material, and you will get 24/7 personal mentorship. Now, the first case is Shakil Ahmad versus Union of India. Now, in this case, it was a three judges bench: Justice Sanjay Kaul, Justice Abhay Oka, and Justice Vikram Nath. It was basically that the Mumbai 1992 blast victims had not received their compensation. So on this, the court has given the judgment. Now, what are the basic guidelines that the court has given? So, first, the court has said that there shall be a committee headed by the members of Legal Service Authority to monitor the implementation of the directions issued by this judgment. So, firstly, एक कमिटी बननी होगी जो ये देखेगी कि जो भी डायरेक्शंस इस जजमेंट में दिए जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज जजमेंट्स में डायरेक्शंस दिए जाते हैं बट फॉलो नहीं हो पाते हैं वो. सो इसीलिए पहले ही द कोर्ट हैज सेड कि एक कमेटी फॉर्म होगी इस काम के लिए. द स्टेट गवर्नमेंट शैल सबमिट टू द कमिटी अ रिपोर्ट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ 168 मिसिंग पर्सन्स इंक्लूडिंग देयर नेम एंड एड्रेसेस. तो ये कोर्ट के पास सबमिट होगी. The state government will also place material regarding efforts made to trace family members of 108 missing persons who have been deprived of compensation in terms of the second government resolution. तो एक second government resolution था जिसमें वो लोग जो जिनकी families का पता नहीं चल पा रहा है उन 108 लोगों के बारे में सारी जो information है वो भी देनी होगी state government को. The state government shall also submit to the committee the record relating to compensation paid. The state government shall also provide a list of victims who have not been paid compensation in terms of both the government resolutions. तो अब किन किन लोगों को compensation मिला है, किन किन को नहीं मिला है, ये पूरी जानकारी और लिस्ट ऑफ विक्टिम्स ये सब स्टेट गवर्नमेंट देगी कोर्ट को. The state government shall pay compensation of rupees 2 lakhs to the legal heirs of the missing persons traced out thereafter. तो अब जब ये 108 people trace out हो जाएंगे तो इन लोगों को 2 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे इनके लीगल एयर्स को, क्योंकि वो लोग तो मिसिंग हैं तो उनको नहीं मिल सकते, with the interest of 9% per annum from 22nd January 1999, that is from the expiry of the period of 6 months from the date of second government resolution till actual pay. तो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही नहीं मिलेंगे बल्कि 9% पर एनम का इंटरेस्ट भी लगेगा 2 जनवरी 1999 से, वो डेट जब तक एक्चुअली उन्हें जो पैसे हैं वो मिल जाने चाहिए थे ऑलरेडी. The committee containing Secretary of MSLSA, which is the Legal Service Authority of Maharashtra, and the other two government officers appointed under this order shall monitor the efforts of the state government to trace other victims who were entitled to compensation in terms of the annexure to the first government resolution, but compensation has not been paid to them. तो ये जो कमिटी है जो बनाई जाएगी वो हेल्प करेगी, इन लोगों को मॉनिटर करेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं उन लोगों को ढूंढने में और उन लोगों को कॉम्पनसेशन पहुंचाने में. Those who were paid compensation after the expiry of the period of 6 months from the date of applicable government resolution, the state government shall pay interest of 9% per annum on the amount of the compensation payable from the expiry of the 6 months from the date of applicable government resolution till the date of payment. तो जिनको भी लेट पेमेंट हुआ है तो जिस दिन पेमेंट हो जाना चाहिए था उससे लेके और जिस दिन भी पेमेंट हुआ है वहाँ तक की का उनको भी 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा. ऑल्दो उनको दिए जा चुके हैं पैसे, लेकिन वो जो डिले हुआ है उसकी भी भरपाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको करनी होगी. The state government shall comply with the requirements of submitting necessary details as aforesaid to the committee within a period of 2 months from today. ये जितनी भी requirements हैं ये कमिटी को 2 महीने में देनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को.
the entire exercise of payment of compensation and or interest shall be completed by the state government within a period of 9 months from today. तो 9 months में उनको पूरा का पूरा ये जितना भी बताया गया ये सब complete करना होगा. All the victims are to be given the compensation. जिनको late compensation मिला है उनको 9% per annum के interest और मिलेगा, और जिनको अब compensation मिलेगा उनको भी 9% per annum 22 जनवरी 1999 से कंटिन्यू होके मिलना होगा. X versus M महेंद्र रेड्डी. नाउ दिस इज अ 2 judges बेंच. इसमें क्या हुआ था कि एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हुई थी. उसमें ये कहा गया कि बेसिकली जो कंटेम्प्ट पिटिशनर्स थे इनके साथ ये हुआ था कि जो इनकी डॉटर थी उसका स्टेटमेंट लिया गया अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC, और वो जो स्टेटमेंट था उसका वो पूरे केस में यूज़ होता रहा बिफोर द चार्जशीट वॉज फाइल्ड, विच इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शंस जो कि कोर्ट ने इन 2 केसेस में पास किए थे. तो द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय Nona Vinakre Police versus Shivanna in 2014 judgment, and A versus State of Uttar Pradesh in 2020 का judgment कि जब जो भी victim है of rape और of sexual harassment वो 164 के अंडर जो भी statement दे वो statement circulate नहीं होना चाहिए है till the charge sheet is filed. लेकिन ये बात मानी नहीं गई, तो इसीलिए ये कंटेम्प्ट पिटिशन डाली गई है. नाउ लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेड. In theory, what is projected in the contempt petition is quite correct. That is to say, despite authoritative pronouncements and directions issued by this court, the copy was applied for and furnished to the accused. Further, the copy of the statement under section 164 was extensively referred. ये जो copy है उसको extensively refer किया गया to in the proceedings before the court. It is quite unfortunate that the concerned court did not notice the violation of the directions by this court. तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये बात तो सही है कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था. Be that as it may, we are not quite convinced that an action in our contempt jurisdiction is required to be initiated in the present fact and circumstances of the case. कोर्ट ये कह रहा है कि हाँ जो स्टेटमेंट्स 164 में दिए गए थे वो यूज़ नहीं होने चाहिए. तो ये बहुत गलत बात है कि एक कोर्ट ने अलाउ किया कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट उसने 164 के स्टेटमेंट्स यूज़ किए. लेकिन हम लोग इस बात से कन्विंस नहीं हैं कि कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन कोर्ट का बनता है या इस पर हम लोग कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने कंपेलिंग नहीं लगे कोर्ट को. Though we do not approve of the practice, we refrain from exercising our jurisdiction in contempt. We suggest to every High Court that the appropriate modifications or amendments be made in the criminal practice or trial rules, incorporating provisions which are consistent with the decisions in state of Karnataka. It's not actually versus. Anyways, state of Karnataka case and A versus state of Uttar Pradesh and another. इन cases में जो directions दिए गए हैं वो follow किए जाएं. ये हर state के high court को देखना है अब. Now let's see कि जो state of Karnataka versus Shivanna alias Tarkari Shivanna, you can just go with Shivanna, इसमें कहा क्या गया था, what is the exact guideline जो follow नहीं की गई. So in that case, the court had said, upon receipt of information relating to commission of offence of rape, the investigating officer shall make immediate steps to take the victim to any metropolitan, preferably judicial magistrate, for the purpose of recording her statement under 164. ठीक, तो 164 का जो statement है, that is the very first step. Now, a copy of the statement under section 164 should be handed over to the investigating officer immediately. जो officer investigate कर रहा है उसे फौरन दिया जाना चाहिए, with a specific direction that the contents of such statement under section 164 CRPC should not be disclosed to any person till charge sheet या report under 173 is filed. जब तक 173 की रिपोर्ट फाइल नहीं हो जाती है, 164 के अंडर क्या बयान दिया है विक्टिम ने ये आप किसी को नहीं बता सकते. क्लियरली इसका वायलेशन हुआ है इस केस में, एंड आगे भी केसेस में हो ही रहा होगा, विच इज़ वाई
द कोर्ट इन दिस केस हैज सेड कि हाई कोर्ट जो है वो अपने क्रिमिनल प्रैक्टिस के रूल्स को अमेंड करवाए और देखे कि ये जो कहा गया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं. नाउ कम स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय. This is a division bench judgment by Justice Chandrachud and Justice Hima Kohli. Now, ये केस आप लोग ने काफ़ी देखा होगा. It's a very very important case for all your upcoming exams, and even if not exams, if you're just a lawyer, it's very important. इसमें पूरे में जो हाईलाइट हुआ है वो ये कि जो 2 फिंगर टेस्ट है वो बैन हो गया है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट वॉज लॉन्ग ड्यू. बट इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन को लेके भी बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस किया गया है, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर आंसर्स. सो इस केस को याद करें फॉर बोथ द थिंग्स, फॉर 2 फिंगर टेस्ट का बैन and also for dying declaration, because you can quote latest cases and why not, and naam bhi aasan hai. So now in this case a girl was raped and then she was burned. ठीक है, केरोसिन डाल के आग लगा दी गई थी. उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ था बाय अ पुलिस ऑफिसर. यहाँ पे कोर्ट थोड़े से फैक्ट्स बता रहा है. The dying declaration makes it abundantly clear that the respondent raped the deceased, poured kerosene on her, and set her on fire. The cause of death was uh, septicemia, which is by burning, which occurred as a result of the burn injuries. Hence, the victim's death was a direct result of injuries inflicted upon her by the respondent. There is nothing on record which gives rise to reasonable doubt as the respondent's guilt. इस केस में सबसे ज़्यादा जो रिलाई किया गया है वो डाइंग डिक्लेरेशन पे. बहुत सारी चीज़ें थी, अभी वील रीड. जो विटनेसेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, एंड ये कहा जा रहा था कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव किया है. तो कोर्ट सेड कि नहीं, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो काफ़ी इनफ है अपने में, और ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो चुका है. सो लेट्स गो थ्रू दोज पैराग्राफ्स. The court has said that there is no rule to the effect that dying declaration is inadmissible when it is recorded by a police officer instead of a magistrate. तो इस केस में पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया था, मैजिस्ट्रेट ने नहीं. आइडियली मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, बट द कोर्ट एज इट सेइंग कि इस वजह से इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने उसको रिकॉर्ड किया है. Although a dying declaration ought to be ideally be recorded by the magistrate if possible, it cannot be said that dying declarations recorded by police personals are inadmissible for that reason alone. सिर्फ इस वजह से वो inadmissible नहीं हो जाते. The issue of whether a dying declaration recorded by a police is admissible must be decided after considering the facts and circumstances of each case. पूरे एविडेंस एक्ट में हम लोग पुलिस पे कोई खास भरोसा नहीं दिखाते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन के तौर पे लिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. अदरवाइज अगर आप पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट देते हो, इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एट ऑल. बट अगर डाइंग डिक्लेरेशन है और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि ये सही डिक्लेरेशन है, देन इट कैन बी एडमिसिबल. The fact that the dying declaration is not in form of question and answers does not impact either its admissibility or probative value. अब डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने का जो बेस्ट फॉर्म है वो ये है कि एक मैजिस्ट्रेट करे और वो एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हो. लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो भी इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी प्रोबेटिव वैल्यू पे या उसकी एडमिसिबिलिटी पे. Lack of medical evidence as to commission of rape cannot be taken that no rape was committed upon the deceased. Just because कोई medical evidence नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि the offense was not committed. Her dying declaration unequivocally states that the respondent raped her before setting her on fire, and there is no rule mandating the corroboration of dying declaration through medical or other evidence. तो आपको और एविडेंसेस ला के उसको corroborate नहीं करना है डाइंग डिक्लेरेशन को if it was a proper declaration. When the dying declaration is not otherwise suspicious. अगर otherwise suspicious नहीं है तो फिर कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आपको corroborate करके दिखाना पड़े. Testifying as to the circumstances surrounding the rape and death of a loved one can be deeply traumatizing event.
which is only compounded by slow pace of the criminal justice system. तो इस केस में बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे दे हैड टर्न्ड हॉस्टाइल, वो हॉस्टाइल विटनेस हो गए थे. तो इसी पे कोर्ट कह रहा है कि ऐसे केसेस में एनी हाउ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है ये इवेंट, और इतना स्लो हम लोग का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दैट द ग्रीफ जस्ट इंक्रीजेस. That certain witnesses, including the family members of the deceased, were declared hostile is insufficient to cast doubt upon the prosecution's case. Just because जो family members थे वो hostile हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि prosecution का case prove नहीं हो पाया है. The court has literally, this case is like the best example of how important a dying declaration can be, a properly recorded one. इसमें हॉस्टाइल हो गए विटनेसेस, कोई बात नहीं. इसमें मेडिकल एविडेंस सही है, कोई बात नहीं. इसमें पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है डाइंग डिक्लेरेशन, इवन दैट्स ओके. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन, इवन दैट इज़ फाइन, बिकॉज हियर द विक्टिम herself इज टेलिंग क्या हुआ है मेरे साथ. सो हाउ कैन इट बी overruled so easily by anything else? Further, the court says, while examining the victim, the medical board conducted what is known as the two-finger test to determine whether she was habituated to sexual intercourse. This court has time and again deprecated the use of this regressive and invasive test in cases of alleging rape and sexual assault. Now comes the two-finger test ka ban. This so-called test has no scientific basis and neither proves nor disproves the allegations of rape. It is instead re-victimizing and re-traumatizes women who may have been sexually assaulted and is an affront to their dignity. So, कोर्ट इसको बहुत कंडेम कर रहा है. द कोर्ट इज सेइंग इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं. इट जस्ट डजंट मैटर इन द केस ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट कि द विक्टिम was otherwise sexually active or not. फर्दर ये जो टू फिंगर टेस्ट है, द कोर्ट सेज कि ये सिर्फ जो ट्रॉमा है उसको दोबारा से द वुमन हैज़ टू रीलिव इट, और कुछ भी नहीं है, प्लस उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है. द टू फिंगर टेस्ट और प्री वेजिनियम टेस्ट, दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक नेम ऑफ इट, must not be conducted. Whether a woman is habituated to sexual intercourse or habitual to sexual intercourse is irrelevant for the purpose of determining whether the ingredients of Section 375 of IPC are present in a particular case or not. इससे क्या फर्क पड़ता है? This so-called test is based on incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped. Nothing can be further from the truth. A woman's sexual history is wholly immaterial while adjudicating whether she was raped or not. Further, the probative value of a woman's testimony does not depend on her sexual history. तो कोर्ट ये कह रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि just because she is having a sexual history, इसका मतलब है कि उसकी जो टेस्टिमनी है it's not good enough, या only because she has consented to have a sexual intercourse once with one person, तो अब उसका कभी रेप नहीं हो सकता. हाउ कैन यू पॉसिबली कंक्लूड एनी ऑफ इट? It is patriarchal and sexist to suggest that a woman cannot be believed when she states that she was raped merely for the reason that she is sexually active. So it's a beautifully worded judgment. Again, Justice Chandrachud just, proves in such judgments why we are so looking forward to him becoming the Chief Justice of India. So this is a very important judgment for two reasons. Again, the two-finger test being banned, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि क्या नाम है इस जजमेंट का या क्या बेंच थी, and that how important a dying declaration is. अब इसके बाद डायरेक्शंस दिए हैं कोर्ट ने. We direct the union government as well as the state governments, दोनों गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है. Ensure that the guidelines formulated by Ministry of Health and Family Welfare are circulated to all government and private hospitals. आप circulate करो guidelines जो formulate हुई हैं regarding this two-finger test. Conduct workshops for health providers to communicate the appropriate procedure to be adopted while examining the survivors of sexual assault and rape.
क्या तरीका है, क्या सही तरीका है, इसके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएँ और जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स एंड ऑल, उनको बताया जाए कि भाई सही मेथड्स क्या हैं, सही तरीका क्या है, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव केस. एंड थर्ड, रिव्यू द करिकुलम इन मेडिकल स्कूल्स. मेडिकल स्कूल से ही आपको हटानी होगी ये चीज़, with a view to ensuring that two-finger test or per-vaginum examination is not prescribed as one of the procedure to adopt while examining survivors of sexual assault and rape. So the court has actually, gone to the root एंड सेड कि भाई मेडिकल स्कूल से ही ये चीज़ हटाना शुरू करो. एंड अभी जो ऑलरेडी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप कीजिए, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सर्कुलेट करवाइए एक प्रॉपर गाइडलाइन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का काम होगा. Any person who conducts the two-finger test or per vaginum examination while examining a person alleged to have been subjected to a sexual assault is in contravention of the directions of this court and shall be guilty of misconduct. यहाँ पे आप misconduct के under fall करेंगे. So that's all for this week. Thank you so much and see you next week. Bye bye. Hello all and welcome to Clat Point. So we will see what has happened in the courts from 7th November to 13th of November. Also, there has been a very important judgment coming from Supreme Court on reservation. We will see that. Now, these are our courses. We have 24/7 personal mentorship. We have past year papers for you. We have mock test series. We have specific classes. We have weekly assignments. Everything you want to prepare for your CLAT, we provide you with it. Now comes the first case, Rahul versus State of Delhi. So the bench was a 3 judges bench, Chief Justice U.U. Lalit, as he then was, and Justice Ravindra Bhatt and Bela Trivedi. Now the facts were that there was this girl, 19-year-old girl, she was abducted, and later on the accused raped her, killed the girl, and then threw her in the fields. Now the trial court convicted the accused and gave him the death penalty. Then again, it went to the High Court, and the High Court obviously upheld the death penalty. Now comes the Supreme Court. So from the said evidence of the concerned witnesses, it clearly transpires that neither a TI parade was conducted by the investigating officer during the course of investigation for the identification of accused, nor any witnesses had identified the accused during their respective depositions before the court. अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन अक्यूज को अक्विट कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग प्रूव ही नहीं कर पाए हैं. सो देयर आर 2 साइड्स ऑफ अ केस, राइट. एक होता है स्टेट, ठीक है, जिसका ये काम है प्रोसिक्यूशन का कि वो ये पता करे कि कौन अक्यूज्ड है, ठीक है, एंड हु इज़ द रियल पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम. दूसरी तरफ हम लोग का डिफेंस साइड होता है, जो ऑब्वियसली जिसको पकड़ा गया है उसके लिए होता है. जो प्रोसिक्यूशन है, इट्स नथिंग न्यू दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ वीकेंड, द होल इंस्टीट्यूशन इज़ वीकनिंग. नाउ ये जो केस है ये उसका बहुत बड़ा सबूत है, बिकॉज इवन द सुप्रीम कोर्ट सेड कि इवन इफ वी नो कि इसी ने ही इतना ग्रूसम एक्ट किया है, he abducted a 19-year-old girl, he raped and then killed her and then threw her in the fields. उसके बाद भी हम लोग इसको पनिश नहीं कर पा रहे क्योंकि जो एविडेंस लॉ है आप उसके तहत चीज़ प्रूव ही नहीं कर पाए हैं. एंड कोर्ट किस पे चलता है? कोर्ट लॉ और एविडेंसेस पे चलता है, इमोशंस पे या गेस वर्क पे नहीं चलता. तो इसी में कोर्ट कह रहा है कि फ्रॉम द साइड एविडेंस, जो कि एविडेंस आया है, ये साफ समझ में आता है कि टीआई परेड नहीं हुई है. तो टीआई परेड होती है, एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, जहाँ पे ये जो विक्टिम होता है या जो लोग होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उनके सामने लोग को खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन था जिसको तुमने देखा वहाँ पे उस क्रिमिनल क्राइम सीन के अराउंड.
वो नहीं कंडक्ट की गई है। एंड दिस समथिंग विच कम्स फ्रॉम द एविडेंस एक्ट इटसेल्फ, ये खुद से नहीं है, ये एविडेंस एक्ट में है कि आपको टीआई परेड करानी होती, नहीं कराया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। Nor any of the witnesses has identified the accused during the respective deposition. ना ही एक भी ऐसा विटनेस है जिसने ये कहा हो कि हाँ ये ही वो इंसान है जिसको हमने क्राइम सीन पे देखा था, जिसको हमने अबडक्ट करते देखा था, खून करते देखा था, बॉडी फेंकते हुए देखा था, कुछ भी नहीं। Therefore, the very identity of the appellant accused having not been duly established, the entire case of the prosecution falls flat on the very first circumstance having not been duly proved by any evidence, much less clinching evidence against the appellant accused. तो कोर्ट ये कह रहा है कि आप आइडेंटिटी ही नहीं प्रूव कर पाए हो। तो वेरी बेसिक थिंग, पहले ये तो प्रूफ होता है ना कि आइडेंटिटी ये यही इंसान था जिसने ये किया। उसके बाद देखा जाता है कि भाई इसी ने ही किडनैप भी किया था कि नहीं, इसी ने रेप किया था कि नहीं, मर्डर किया था कि नहीं, फेंका था कि नहीं, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। एक्ट्स फिर इवेंचुअली देखा जाएंगे कितना ग्रूसम था, कौन सा चार्ज लगेगा, कौन सा चार्ज प्रूव हो रहा है, एवरीथिंग। पर आइडेंटिटी तो इस्टेब्लिश हो, आइडेंटिटी ही नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। Nature of confessions before the police were hit by section 25 of the Evidence Act. This is something जो हम सब लोग जानते हैं। अगर उस इंसान ने जो अक्यूज्ड है उसने जाके पुलिस के सामने कन्फेस किया कि हाँ हमने खून किया, इट्स नो गुड, क्योंकि सेक्शन 25 ये क्लियरली कहता है कि वो प्रूव ही नहीं किया जा सकता है जो चीज़ पुलिस के सामने कही है। The law in this regard is very clear that the confession before the police officer by the accused when he is in police custody cannot be called an extrajudicial confession. वो extrajudicial confession नहीं होता। Confessions दो होते हैं, judicial confession जो जज के सामने होता है, magistrate के सामने होता है, दूसरा extrajudicial confession जो जज के अलावा किसी के सामने होता है। पुलिस उसमें लाई नहीं करती। If a confession is made by the accused before the police and a portion of such confession leads to recovery of an incriminating material, such portion alone can be admissible under section 27 of the Evidence Act and not the entire statement. तो अगर कोई इंसान जाके ये कह रहा है कि हाँ मैंने खून किया और जो वेपन था जिससे खून किया वो मैंने उस गाड़ी में पीछे छुपा दिया है, तो अब जो ये वाला स्टेटमेंट का ये पार्ट है जहाँ पे वो कह रहा है कि हाँ ये जो वेपन है वो मैंने उस गाड़ी के पीछे छुपाया है, ये एडमिसिबल है। ठीक है, ये पोर्शन एडमिसिबल होगा। इसकी तरह से जाके और पुलिस ढूंढ सकती है, वो वेपन रिकवर हो सकता है, ये अपने आप में एडमिसिबल होगा। पर उससे पहले वाला जो पोर्शन है जहाँ वो इंसान पुलिस से कन्फेस कर रहा है कि मैंने खून किया, वो एडमिसिबल नहीं होता। And not the entire confession statement. In the instant case, therefore, the trial court had committed gross error in exhibiting the entire disclosure statement of the accused recorded for being read in evidence. और trial court ने क्या गलती की? Trial court ने उस पूरे statement को as evidence ले लिया, जबकि वो पूरा statement evidence है ही नहीं, और ये चीज़ section 27 में बहुत clearly दी हुई है। Thus, having regard to the totality of circumstances and the evidence on record, it is difficult to hold that the prosecution had proved the guilt of the accused by adducing cogent and clinching evidence. तो कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हम सब कुछ मिला के देखें तो जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव ही नहीं कर पाया है गिल्ट इस इंसान की। As per the settled legal position, in order to sustain conviction, the circumstances taken cumulatively should form a complete chain. So complete that there is no escape from conclusion that within all human possibility and probability the crime was committed by the accused and no one else. तो अगर हम कोई भी क्राइम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव करते हैं तो हमें चेन बनानी होती है, डॉट टू डॉट हम लोग को मैच करना होता है। कहीं भी हम लोग बीच में गैप नहीं छोड़ सकते हैं कि शायद इस इंसान ने नहीं, किसी दूसरे इंसान ने किया। जैसे ही वो चीज़ आ जाती है वैसे ही कह दिया जाता है कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ है। तो इसीलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे ऑल्दो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस इनफैक्ट ज़्यादातर प्रूव होते हैं, लेकिन वो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बनाए बिना नहीं हो सकते। The circumstantial evidences must be complete and incapable of explanation other than the hypothesis. तो अगर हमारी hypothesis है कि A ने मर्डर किया है तो उसके अलावा कुछ भी और पॉसिबिलिटी नहीं दिखनी चाहिए।
than that of the guilt of the accused, and such evidence should not only be consistent with the guilt of the accused but should also be inconsistent with his innocence. तो डबल प्रूव करना पड़ता है. एक है कि वो गिल्टी है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जो मिली हैं एविडेंसेस, इससे प्रूव होता है कि वो इंसान गिल्टी है. दूसरा कि इनोसेंट नहीं हो सकता. दोनों चीज़ें प्रूव करनी होती है क्योंकि इट्स अ ग्रेवर थिंग. The prosecution has to bring home the charges leveled against them beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt हमारा key है, ये basis है crime proof करने का, which the prosecution has failed in the instant case. Resultantly, the court is left with no alternative but to acquit the accused. Accused acquit हो गया इतने gross crime के बाद भी. क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोसिक्यूशन जो हम लोग का था वो प्रूव ही नहीं कर पाया. Though involved in a very heinous crime, it may be true that if the accused involved in the heinous crime go unpunished or are acquitted, a kind of agony and frustration may be caused to the society in general and to the family of the victim in particular. However, law does not permit the courts to punish the accused on the basis of moral conviction or on suspicion alone. तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है, एंड कोर्ट इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि ये जो एक्विटल हुआ है यहाँ पे, इससे फ्रस्ट्रेशन और एगनी होगी सोसाइटी में, एंड इन जनरल सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा. जो फैमिली मेम्बर्स हैं विक्टिम के, दे विल बी बैडली अफेक्टेड. इनफैक्ट इन लोग का इंटरव्यू भी आया है. इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन सी. बहुत जगह वो इंटरव्यू सर्कुलेट हुआ है जहाँ पे जो विक्टिम की फैमिली है, दे आर क्राइंग एंड दे आर लाइक वी कुड नॉट गेट जस्टिस. एंड कोर्ट इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे सामने कोई सबूत ही नहीं रखे गए हैं कि हम उस इंसान को पनिश करें. आप सबूत तो ला के दीजिए, क्योंकि लॉ जो है वो मॉरल कन्विक्शन पे हम लोग नहीं कर सकते कि हाँ सबको ये लगता है कि इसी ने किया है मर्डर, इसीलिए हम लोग इसको पनिश कर दें. यू हैव टू प्रूव. सस्पिशन पे नहीं चलता है लॉ. No conviction should be based merely on the apprehension of indictment or condemnation over the decision rendered. सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको लग रहा है, चांसेस हैं कि इसी ने किया हो क्राइम, इस बेसिस पे कभी भी पनिशमेंट्स नहीं दी जा सकती. Every case has to be decided by the court strictly on the merits and in accordance with the law without being influenced by any kind of moral pressures or otherwise. तो कोई भी moral pressure से influence होके कोर्ट डिसीजंस नहीं दे सकता है. जो मेरिट्स हैं, जो फैक्ट सामने रखे गए हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको उसी पे ही केस को डिसाइड करना होगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ सेक्शन 357A ऑफ CRPC, जिसमें कॉम्पनसेशन की बात होती है. द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज्ड विक्टिम would be entitled to the compensation even though the accused have been acquitted. तो even though accused acquit हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो victim है उसके साथ गलत नहीं हुआ था. Victim is still the victim. तो ठीक है, हम लोग को accused नहीं, हम लोग conviction नहीं दिला पाए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि victim को कुछ नहीं मिलेगा, victim की family को. Hence, while allowing these appeals and acquitting the appellants accused, we direct that the parents of the victim would be entitled to compensation. उनको compensation मिलेगा. वो compensation क्या है और कितना है, ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिसाइड करेगी. Now comes the next case, नारायण मेडिकल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये डिवीजन बेंच थी जस्टिस शाह एंड जस्टिस दुलिया की. अब इसमें क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, ठीक है, जो कि रिट पिटिशंस जिसके लिए हाई कोर्ट के सामने गई. अब जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है, उसने ये बोला कि नहीं भाई, जो गवर्नमेंट ऑर्डर का है डिसीजन वो गलत है और आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं विदाउट रिकमेंडेशन और रिपोर्ट ऑफ द एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी. तो बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्डर था जिससे एडमिशन फ़ीस बढ़ाई गई थी. वो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो कमिटी है जिसके रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट के बाद ही फ़ीस बढ़ाई जा सकती है एज़ पर लॉ, वो कमिटी से आपने सलाह नहीं ली है. अब इस पे कोर्ट ने आगे क्या कहा? नो एरर हैज़ बीन मेड बाय हाई कोर्ट इन कॉशिंग एंड सेटिंग असाइड द गवर्नमेंट ऑर्डर. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए कह रहा है कि हाई कोर्ट ने सही ऑर्डर दिया है और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, आप इससे ट्यूशन फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नहीं बढ़ा सकते.
the government of Andhra Pradesh on the representations made by private medical colleges enhanced the tuition fees, though the revision fees was pending, considering the AFRC. So AFRC इनकी ये कमीशन है, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी. इसी के बाद जब ये रिकमेंड करती है कि हाँ फीस बढ़ा दें, तब फीस बढ़ाई जाती है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उस रिप्रेजेंटेशन के तहत उनकी फीस बढ़ा दी, विच इज़ रॉन्ग एज पर लॉ. द स्टेट गवर्नमेंट इन्हांस द ट्यूशन फी exorbitantly to 24 lakh per annum, which was 7 times the fee fixed earlier. तो थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं हुआ, 7 टाइम्स जो फीस है वो मेडिकल कॉलेजेस की इंक्रीज कर दी गई, दैट टू जो लॉ कहता है उसके अगेंस्ट जाते हुए. To enhance the fee of 24 lakhs per annum, 7 times more than the fee fixed earlier, was not justifiable at all. तो कोर्ट ये कह रहा है कि तो ये अपने आप में जस्टिफाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज नॉट बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. द ट्यूशन फी शैल ऑलवेज बी अफोर्डेबल. आप अफोर्डेबल रखें जो एजुकेशन है. अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट. आप 12th तक की तो हर बच्चे को पढ़ा दो आरटी के अंडर के भाई राइट टू एजुकेशन, बच्चे पढ़ लें. बट क्या एक बार पढ़ लिया 18 ईयर्स के बाद फिर क्या? हाउ कैन समबडी पे 24 lakhs per annum? Although the clad kids will have to, but फिर भी there is a way जिससे वो फीस बढ़ाई जाती है, तय की जाती है, and it's not this much. Determination of fee or review of fee shall be within the parameters of the fixation rules and shall have direct nexus on the factors जो कि rules में mention किए गए हैं. Now comes the next case, R.P. Ravichandran versus State of Tamil Nadu. Division bench, Justice Gavai and Justice Nagarathan. अब फैक्ट्स क्या थे इसके कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन सा केस था. जो राजीव गांधी थे या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको जिन लोगों ने मारा था, द वंस हु मर्डर्ड हिम, उनके ऊपर चार्जेस आईपीसी के, एक्सप्लोजिव एक्ट्स, आर्म एक्ट्स, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, क्योंकि सिर्फ यहाँ के लोग नहीं इन्वॉल्व थे उसमें, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, ये टाडा, द टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये सब कुछ लगाया गया था क्योंकि उन लोगों ने असैसिनेट किया था आर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. ठीक है, इन लोगों को छोड़ दिया गया है. सो इन लोगों ने पार्डन प्ली डाली थी, एंड ऑब्वियसली जो फैमिली होती है उसको भी परस्यू किया जाता है. तो राजीव गांधी की फैमिली वाज ऑल फॉर इट कि हाँ ठीक है उन लोगों को छोड़ दिया जाए. ओरिजिनली उन लोगों को डेथ पेनल्टी मिली थी, अब डेथ पेनल्टी से कम करके ये हुआ कि उनको जितनी सज़ा मिली है उतने पे ही उनको छोड़ दिया जाए. उनका बिहेवियर वगैरह देखा गया, जो फैमिली थी राजीव गांधी की, दे वर विलिंग टू लेट इट गो, तो इसलिए छोड़ा गया. नाउ लेट्स रीड व्हाट द कोर्ट सेड. The Cabinet of the State of Tamil Nadu has passed a resolution on 9th of September 2018 recommending the release of all the appellants, यहाँ पे जो appellants और applicants हैं, including the original convict, A.G. Paravaran. The State Cabinet had resolved the grant remission to all the appellants and applicants. तो जो State Cabinet है उसने ये resolution pass किया और सबको जाने दिया गया. The conduct of these appellants has been found to be satisfactory. Most of them are suffering from various ailments. All of them have undertaken various studies during the period of incarceration. जितने दिन वो थे अंदर जेल में, उनका बिहेवियर सही रहा है, उन लोगों को काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी हो गए इतने सालों में, और जितने दिन वो वहाँ पे रहे हैं जेल में उतने टाइम पे उनको काफ़ी स्टडीज़ के भी वो सब्जेक्ट्स रहे हैं. तो ये सब देखते हुए उन लोग को छोड़ दिया गया है. Now comes a very important case for the week and for all of your exams, Janhit Abhiyan versus Union of India. तो 2019 में एक अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, 103rd अमेंडमेंट, जिसमें हम लोग का आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया. इसमें क्या हुआ था कि जो वैलिडिटी है उसको क्वेश्चन किया गया. क्यों? क्योंकि इसके तहत 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया जॉब्स में और एजुकेशन सिस्टम में, वो
सब मतलब जिन लोगों ने पिटिशन डाली दे वर ऑफ द व्यू कि ये अगेंस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रिजर्वेशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन लिखा है पर्टिकुलरली फॉर SC STs एंड OBCs। ये जो अब ला रहे हैं 10% वो है उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। तो they may belong to any caste, they may not be a scheduled tribe, they may not be OBCs, they may be of very high caste, supreme जो caste हैं उसमें से हो सकते हैं वो, बट दे आर वेरी वेरी पुअर। तो उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया विच वॉज 10%। और ये जॉब्स में और एजुकेशन सिस्टम दोनों में लाया गया। तो इसी को चैलेंज किया गया। अब ये जो बेंच थी वो 5 जजेस बेंच थी, जिसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। कौन कौन था इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ दैट टाइम जस्टिस यू ललित, जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस परदीवाला। इसमें मेजॉरिटी जजमेंट 3 जजेस का है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस परदीवाला। तो इन लोगों ने तो अपहोल्ड किया है इस अमेंडमेंट को। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने डिसेंडिंग ओपिनियन दी है। ही वॉज नॉट ऑफ द ओपिनियन कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के जस्टिस यू ललित, उन्होंने भी डिसेंट करते हुए अपना एक कॉन्करिंग जजमेंट दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि डिसेंट उनकी भी थी, उनको भी लगता है कि नहीं ये 10% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पर उनके रीजंस अलग थे दैन फ्रॉम जस्टिस रविंद्र भट्ट। अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। तो पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? पेटिशनर वो है जिसने चैलेंज किया है ये 10%। तो पेटिशनर का कहना था कि जो EWS कोटा है, दिस इज क्वाइट ऑपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन विच इज अ टूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। इट इज़ नॉट अ स्कीम फॉर फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट। सबसे पहले तो पेटिशनर से कहा कि भाई इंडिया में हम लोग रिजर्वेशन इसलिए नहीं लाए कि जो लोग पुअर हैं वो पढ़ाई कर पाएँ। दिस वॉज नॉट द आइडिया। या जो पुअर हैं उनको जॉब्स मिले, दिस इज़ नॉट वेयर इट कम्स फ्रॉम। आइडिया ये था कि वो लोग, वो कास्ट, वो ट्राइब्स, वो जिन्होंने एक सिंस हिस्टोरिकल टाइम्स एक बहुत ही ख़राब रवैया झेला है फ्रॉम द सोसाइटी, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। क्योंकि अदरवाइज उनको कोई एडमिशन नहीं देगा, उनको कोई जॉब नहीं देगा अगर रिजर्वेशन सही होंगे तो। फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट का ये टूल नहीं था कभी भी, दे आर नॉट स्कॉलरशिप्स। EWS quota excludes socially and educationally backward classes. The benefits are confined only to forward classes. दूसरी बात ये कही कि अगर कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है एंड उसमें कोई पुअर भी है तो उन पे ये 10% लागू नहीं होता, ये सिर्फ फॉरवर्ड क्लासेस के लिए है। अ पर्सन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन नॉट बी अ यार्डस्टिक ऑफ डिटरमाइनिंग देयर क्लास। दूसरा इन लोग ने कहा कि क्लास जो है स्पेशली इंडिया में किसी के इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर डिसाइड नहीं होती है। सैडली इट इज़ बेस्ड ऑन कास्ट। Backward classes had limited representation. The reason is to undo the historical injustice that they have been facing at the hands of society. उनको कुएं से पानी ना पीने देना, उनको उस चेयर पे ना बैठने देना जहाँ पे फॉरवर्ड क्लास के लोग बैठेंगे, या उनको टेम्पल्स में ना आने देना, उन लोग को घोड़ी पे ना चढ़ने देना, उन लोग को वो ना देना, जॉब्स ना देना, अगर उनको जॉब मिल जाए तो उनको प्रमोशन ना देना। तो ये सब चीज़ें जो होती रही हैं और जो अभी भी हो रही हैं, उनको फाइट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट अभी था ही नहीं इंडिया में रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50% ऑफ द सीट्स। तो ये हम लोग के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें ये कह दिया गया था कि भाई 50% इज़ अ मैक्सिमम कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो। तो अब अगर 10% दिया जाएगा, जो कि 15 क्लॉज 6 में लिखा है कि ये जो रिजर्वेशन है 10% का, ये इन एडिशन टू द रिजर्वेशन विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी 50% एग्जिस्टिंग है। अब ये जो 10% है, दिस विल मेक रिजर्वेशन 60%। तो बेसिकली जनरल क्लास के लिए अब सिर्फ 40% ऑफ द सीट्स बच रही हैं। तो ये अगेंस्ट है जो जजमेंट्स आ चुके हैं उनके। अब रिस्पोंडेंट ने क्या कहा, यानी कि स्टेट का साइड। तो स्टेट ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, दे हैव बीन लोडेड विद बेनिफिट्स बाय अफर्मेटिव एक्शन, देयरफॉर दे डू नॉट रिक्वायर एडिशनल बेनिफिट। कोर्ट का 10% में कोर्ट ने नहीं कहा,
स्टेट ने कहा हम उनको 10% में इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हद से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, दे आर लोडेड विद बेनिफिट्स, जो उन लोगों को एफर्मेटिव एक्शंस यानी कि रिजर्वेशंस मिलते हैं उससे, और उनको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए अब। बैकवर्ड क्लासेस कंटेन सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस विद इन देमसेल्व्स। तो जो ओबीसी है उसमें ऑलरेडी, या एसईबीसीज हैं जिसको हम लोग कहें दी हायर टर्म, उसमें ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, तो वो उनको रिजर्वेशन उसी में ही मिल रहा है। अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस डिड नॉट गेट बेनिफिट्स अंडर द एक्जिस्टिंग रिजर्वेशन, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो कि उन कास्ट से नहीं बिलोंग करते हैं, उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज लिमिटेड टू 50% एंड 10% विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन रिजर्व कैटेगरी। तो ये जो नॉन रिजर्व्ड है, जो अभी 50% था, उसमें उसमें से हम 10% निकाल रहे हैं। 50% सीलिंग लिमिट वॉज नॉट इनवाइलेबल एंड कुड बी ब्रीच्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और लास्ट में ये कहा कोर्ट ने, स्टेट ने, कि जो 50% की सीलिंग है हम उसको नहीं हटा रहे हैं कुछ भी, और हम एक्स्ट्रा 10% दे रहे हैं अनरिजर्व में से, इसकी वजह से 60% रिजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो सीलिंग थी 50% की, ये कभी भी इनवायलेबल नहीं थी। ये नहीं था कि हम वायलेट ही नहीं कर सकते हैं इनको, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसको ब्रीच कर सकते हैं, एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। अब कोर्ट ने क्या कहा, ये मेजॉरिटी जजमेंट है। The question as to whether any particular section or person falls in or is entitled to stand within the class of economically weaker sections of citizens may be a question to be determined with reference to the parameters laid down and indicators taken into consideration by state. तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन आता है ये स्टेट डिसाइड करेगा, और स्टेट ने अपने कुछ पैरामीटर्स उसके लिए डिसाइड किया होंगे। Coupled with this, even the extent of reservation provided therein may also be a question to determine with reference to the relevant analysis of the material data justifying a particular percentage. अब ये 10% क्यों है, 5% क्यों नहीं है, 8% क्यों नहीं है, या 12% क्यों नहीं है, ये स्टेट ने कुछ देखा ही होगा, देखा होगा कि हम कितना एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन दे सकते हैं। कोर्ट इसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, कोर्ट कह रहा है किया है तो सही किया होगा, कुछ देख के किया होगा, कोई डेटा इन लोग पास रहा होगा जिसके चलते इन लोग ने ये 10% डिसाइड किया है। In other words, the question as to whether any particular classification as economically weaker section is based on a relevant data and factors as also the extent of reservation for that section. तो कितना किसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, बेसिकली दिस इज समथिंग जो कि स्टेट के पास पार है और कोर्ट इसमें नहीं बोल सकता। Same as that, Parliament is not at the liberty to destroy the basic structure of the Constitution. The Constitutional Court is also not at the liberty to declare constitutional amendments void because of their perceived injustice or impolicy, or where they appear to the court to be violating fundamental principles of governance. कोर्ट ये कह रहा है कि जैसे पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, वैसे जो कोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट की ये लिबर्टी नहीं ख़त्म कर सकती हैं कि वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उनके वॉइड करार कर दें सिर्फ क्योंकि उन लोग को लगता है कि इनजस्टिस हो रही है। Unless such principles are placed beyond legislative encroachment by the constitution itself, unless वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई काम कर रहा है, we cannot stop them. It is beyond doubt that using the doctrine of basic structure as a sword against the amendment in question and thereby to stultify states' efforts to do economic justice as ordained by preamble and DPSP enshrined in articles 38, 39, 46 जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, cannot be countenanced. तो कोर्ट ये कह रहा है कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो प्रियम्बल और DPSP में दिया हुआ है। This is essentially for the reason that provisions contained in Article 15 and 16 providing for reservation being of exception to the general rule of equality cannot be treated as basic feature. कोर्ट ये कह रहा है कि आर्टिकल 14 जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इक्वालिटी, 15 और 16 उसके एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस हैं उनको आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हो। तो अगर 15 और 16 में जो पहले दिया हुआ था उससे हट के कोई रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 15 और 16 बेसिक स्ट्रक्चर था। 15 and 16 is not the basic structure. Moreover, even if reservation is of one of the features of the Constitution, it being in nature of enabling provision only cannot be regarded as essential feature of that nature whose modulation for the sake of other valid affirmative action would damage the basic structure of the Constitution.
कोर्ट ये कह रहा है कि 15 और 16 एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, यानी कि ये पार्लियामेंट को एक ऑप्शन देते हैं इनेबल करने का कि अगर तुमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना हो तो तुम कर सकते हो। वो ये कंपलसरी नहीं कर रहा है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करो ही करो, कोई लॉ बनाओ, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो इफ़ यू थिंक कि रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आप एनेबलिंग प्रोविजन को एसेंशियल फीचर नहीं कह सकते हैं। Therefore, the doctrine of basic structure cannot be invoked to challenge 103rd Amendment. तो कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि 15-16 है ही नहीं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 है, उसको कहीं डिसरिगार्ड नहीं किया गया है, लेकिन 15 और 16 नहीं है क्योंकि वो एनेबलिंग प्रोविजन है। एनेबलिंग प्रोविजन को आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। कंक्लूड क्या किया गया है इसमें, जो मेजॉरिटी जजमेंट है कि रिजर्वेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ओनली फॉर इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास और सेक्शन सो डिसएडवांटेज्ड एज टू बी आंसरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वीकर सेक्शन। कोर्ट ये कह रहा है कि जो भी वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है हम उसके लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब वो वीक सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, कैसे भी हो, वो पार्लियामेंट डिसाइड करके उसको बिल्कुल रिजर्वेशन दे सकती है। In this background, reservation structured singularly on economic criteria does not violate the essential feature of the Constitution and does not cause any damage to the basic structure of the Constitution of India. तो कोर्ट ये कह रहा है कि भाई रिजर्वेशन आप इधर अभी तक की दे रहे थे उन लोगों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंची है, जो सोसाइटी में डिप्राइव्ड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं हम उनको दे नहीं सकते। दिस इज एसेंशली फॉर द रीज़न, I'm sorry, I went behind here. Now comes the second point. Exclusion of the classes covered by 15 clause 4, 15.5 and 16.4 from getting the benefit of reservation as economically weaker section being in the nature of balancing the requirements of non-discrimination and compensatory discrimination does not violate equality code. तो कोर्ट ये कह रहा है कि जैसे 15 क्लॉज 4, 5 और 16 क्लॉज 4 में क्या हुआ है, रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, सॉरी, एक्सक्लूजन ऑफ द क्लासेस, जो क्लासेस ऑलरेडी 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 में जिनको रिजर्वेशन दिया गया है उनको अब ये 10% वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोर्ट ये कह रहा है कि ये कहीं भी गलत नहीं है कि भाई आप किसी एक रिजर्वेशन पॉलिसी में फॉलो कर रहे हो। अगर आप 15.4, 5 या 16.4 में हो तो आप 15 क्लॉज 6 या 16 क्लॉज 6 वाले रिजर्वेशन के कोटा में नहीं आ सकते हो। ये चीज़ इसलिए है कि भाई कॉम्पनसेट करे डिस्क्रिमिनेशन को, कि जो 10% वाले हैं, जो पुअर हैं, उनको भी एक स्पेस मिले, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले। ये अपने आप में कॉम्पनसेटरी है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इक्वालिटी का कोड वायलेट कर रहा है। एंड इट डज नॉट इन एनी मैनर कॉज डैमेज टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। Reservation for economically weaker section of citizens up to 10% in addition to the reservation does not result in violation of any essential feature of the Constitution of India and does not cause any damage to the basic structure on account of breach of ceiling of 50%. 50% की सीलिंग ब्रेक होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो गया। क्योंकि वो सीलिंग, वही चीज़ जो स्टेटिंग आई थी कि वो सीलिंग फ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है। And in any case applies only to the reservation envisaged in 15 clause 4, 5 and 16 clause 4 of the Constitution। और वो जो 50% का सीलिंग है वो तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 के लिए दिया गया, यानी कि जो SC ST और ये OBC है आप उसको, जो SC BCs हैं आप उन पे ये 50% लागू करते हैं और किसी पे नहीं होता है। और ये जो 10% वाला रिजर्वेशन है वो तो इनमें आ ही नहीं रहा, वो 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में आता है। अब आता है डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग ओपिनियन में क्या कहा है, बेसिकली डिसेंटिंग ओपिनियन में वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 10% का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जो जज हैं यहाँ पे जिन्होंने डिसेंट किया, उनका ये कहना है कि ठीक है, आपको अगर इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देना है तो आप दीजिए, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ नॉट वायलेटिंग द इक्वालिटी कोड पर से। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जो लोग, now let's read it from here, that reservation or special provision have so far been provided in favor of historically disadvantaged communities। अभी तक किसको मिल रहा था? जो कि historically disadvantaged थी।
cannot be the basis for contending that the other disadvantaged groups who have not been able to progress due to the ill effects of poverty should remain so and the special provisions should not be made for them. कोर्ट ये कह रहा है ये कोई बात नहीं हुई कि सिर्फ जो है जो हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज है सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिले, जो पुअर हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये गलत नहीं है. प्रॉब्लम इज कि the identifier of the new criteria is based on deprivation faced by individuals. Therefore, which community the individual belongs is irrelevant. तो कोर्ट ये कह रहा है कि ये कोर्ट नहीं, ये जो डिसेंटिंग ओपिनियन है उसमें ये कहा गया कि वो इंडिविजुअल किस कम्युनिटी का है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कौन सी कास्ट का है, कौन सी कम्युनिटी का है, इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. सिर्फ ये देखो कि वो पुअर है कि नहीं है. An individual who is a target of the new 10% reservation may be a member of any community or class. ये नहीं देखना चाहिए है कि वो 15(4), 15(5) या 16(4) में फॉल करता है कि नहीं. The state does not, and perhaps justly so, will not look into her background. Yet, in the same breath, the state is saying that the members of certain communities, 15(4), 5 and 16(4), who may be equally and desperately poor, वो भी इतने ही गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनको ये वाला 10% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. दिस इज द बेसिस ऑफ द डिसेंडिंग ओपिनियन कि जो लोग उधर कवर हो रहे हैं 15(4), 15(5), 16(4) में, उनको इधर भी कवर करने देना चाहिए. ये 10% रिजर्वेशन सिर्फ फॉरवर्ड क्लासेस के लिए है, ये गलत है. This dichotomy of on the one hand using a neutral identifier entirely based on economic status, एक तरफ आप सिर्फ economic status देख रहे हो, कास्ट नहीं देख रहे हो, और वहीं पे आप social status वाली जो particular caste है उनको डिप्राइव कर रहे हो, ये against है equality code के. It is clear that it is arbitrary, the judge says, and results in hostile discrimination of the poor section. अब आप poor section में ही discrimination कर रहे हो, ठीक है. For these reasons, insertion of 15 clause 6 and 16 clause 6 is struck down, is held to be violative of equality code, particularly the principle of non-discrimination and non-exclusion, which forms an inexorable part of the basic structure. कोर्ट ये कह रहा है, जज ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको ख़राब कर रहे हो. क्यों? क्योंकि जो लोग 10% के रिजर्वेशन में है वो सिर्फ फॉरवर्ड क्लासेस के लिए है, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है, और ये डिस्क्रिमिनेशन है एज पर द डिसेंटिंग ओपिनियन. So that's all. This was the case and these are the cases, but yeah, this is the most important case. So please go through it and thank you so much. Have a great day. See you next week. Bye-bye. Hello all and welcome to Clad Point. Today we will be covering a vast amount of days, as in what the courts have said and done from November 14 to November 27th. Now the CLAT exam is very near. These are the courses. And do contact us for whatever you need to crack your CLAT exams. Any kind of help which we will be able to give you, we'll be happy to. Now the first is Buri Bai versus State of Madhya Pradesh. The bench was a division bench, Justice Dinesh Maheshwari and Justice Dhulia. Now what were the facts of the case? Now here there was the deceased was actually the daughter-in-law of the appellant, right, who is the mother-in-law in this case. And the deceased had actually died by hanging herself under, unusual circumstances. She had also written a suicide note wherein she had clearly stated, she had implicated that her husband and in-laws, and particularly the appellant, the mother-in-law, they were the reason why she had committed the suicide, because they had tortured her. Now, what had happened was that they were granted bail. Eventually, every court granted them bail. Now, the appellant was given bail by trial court, and then it was set aside by the High Court. Right? The High Court said that no, you should not be given bail, because earlier when the FIR was filed and the charge sheet was, filed, the mother-in-law was escaping for many days, and therefore it's not safe to grant her bail. Now this came to Supreme Court. Now what did the Supreme Court say about cancellation of bail? It said that it had not been the case of the prosecution that the appellant had misused the liberty
जो लिबर्टी मिली है वो मिसयूज़ की है, ये कहीं नहीं बोला गया है. और हैड कंपोर्टेड herself in any manner in violation of the conditions imposed on her. ना ही उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जो उनकी बेल कंडीशंस थी उनको वायलेट करता हुआ कोई काम हो. We are impelled to observe that the power of cancellation of bail should be exercised with extreme care and circumspection, and such cancellation cannot be ordered merely for any perceived indiscipline on part of the accused before granting bail. तो कोर्ट ये कह रहा है कि अगर जो एपेलेंट है उन्होंने अपनी लिबर्टी का मिसयूज़ नहीं किया, उन्हें जो कंडीशंस बोली गई थी वो वायलेट नहीं की, जो बेल कंडीशंस होती हैं, तो जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है ये बहुत केयरफुली किया जाना चाहिए. आसानी से नहीं कैंसिल कर देनी चाहिए किसी की बेल. और आप कभी भी बेल इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान इनडिसिप्लिन करेगा. किस बेसिस पे? क्योंकि बेल मिलने से पहले उसने कुछ ऐसा काम किया है. In other words, the powers of cancellation of bail cannot be approached as if of disciplinary proceedings. Disciplinary proceedings है ये कह रहे हैं आपने उससे पहले ये काम किया था तो अब आप अंदर रहिए जेल के, against the accused. And in fact, in a case where the bail has already been granted, it is upsetting under section 439 clause 2 CRPC to envisage only in such cases where the liberty of the accused is going to be counteracting the requirements of a proper trial of the criminal case. तो कोर्ट ने ये बता दिया है कि मेन रीज़न क्या होना चाहिए किसी की बेल की कैंसिलेशन का. वो ये होना चाहिए कि अगर उस इंसान को बेल मिली रही तो फिर जो एक प्रॉपर ट्रायल है वो नहीं हो पाएगा. एंड दैट कैन बी द ओनली रीज़न वाई अ बेल शुड बी कैंसल्ड. नाउ कम्स रणदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी चंडीगढ़. Now bench again, division bench, Justice Anuradha Bose and Justice Vikram Nath. फैक्ट्स क्या हैं? तो इस केस में ये हुआ था कि जो एपेलेंट था वो कन्विक्ट किया गया था अंडर 498A, ठीक है, ऑफ आईपीसी. लेकिन उसने कंटेस्ट किया कोर्ट में कि भाई अब हमारी सज़ा ये ख़त्म कर देनी चाहिए और यू नो आई वॉज नॉट somebody who did all the fallacies जो बोली गई हैं. इस बात पे जो कंप्लेनेंट थी, जो वाइफ थी, उसने उसको कंटेस्ट नहीं किया उसकी अपील को, यानी कि अपील के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला. तो हस्बैंड ने बोला कि मुझे छोड़ दो एंड द वाइफ हैज़ टू, आइडली क्या होता है, आप दूसरी साइड उसको निगेट करता है कि नहीं भाई इनको जो है वो छोड़ो नहीं और 498A का क्राइम किया है हमारे ऊपर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ पे. शी वॉज फाइन विद द हस्बैंड बीइंग डिस्चार्ज्ड ऑफ ऑल दी सेक्शंस एंड क्राइम इम्पोज्ड. तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था? तो ट्रायल कोर्ट अपॉन फाइंडिंग द एपेलेंट गिल्टी हैड इम्पोज्ड 2 years का पनिशमेंट. तो 2 साल के पनिशमेंट मिला हुआ था हस्बैंड को, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील की. अब दिस जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑर्डर ऑफ सेंटेंस ये एपेलेट कोर्ट ने सस्टेन किया था. हाई कोर्ट ने रिविजन जुरिस्डिक्शन में अपने उसको भी इंटरफेयर नहीं किया. सब्सटैंटिव सेंटेंस को 6 months के लिए रिड्यूस कर दिया. नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस. As there are concurrent findings of the fact, we do not find any reason to interfere with the judgment of the conviction of appellant. तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, जो वाइफ है वो इसके अगेंस्ट नहीं बोल रही हैं, ठीक है, जो अपील फाइल की है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने, एपेलेट कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने अपने रिविजनल जुरिस्डिक्शन में इसको कन्विक्ट किया है. फैक्ट स्टैब्लिश्ड हैं कि जो हस्बैंड है उसे 498A का क्राइम किया है, ठीक है. तो इसलिए कोर्ट ने क्या कहा कि हम ये तो चेंज नहीं करेंगे कि फैक्ट्स कुछ और हैं, ना ही हम ये बोलेंगे कि 498A का जो क्राइम है वो नहीं हुआ था. हाँ, बिकॉज the wife wants to live with the husband and carry on with the matrimonial life, तो हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसकी जो पनिशमेंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं टू द अमाउंट जितना वो ऑलरेडी ही हैज़ अंडरगॉन. तो 2 साल में जितनी पनिशमेंट वो ऑलरेडी जेल में गुजार चुके हैं, बस अब उनकी पनिशमेंट उतने को रिड्यूस हो गई. ये नहीं कहा गया कि यू आर बीइंग डिस्चार्ज्ड और यू आर बीइंग एक्विटेड. ही वाज नॉट एक्विटेड. जो पनिशमेंट थी वो रिड्यूस हुई है सिर्फ. Now comes state of Jammu Kashmir, now a union territory, versus Shubham Sangra.
ये जो केस है ये जो कथुआ रेप केस था ये उसके ही प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। इसमें बेंच थी जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस पर्दीवाला की। जो उसमें बहुत सारे अक्यूज थे उसमें से एक अक्यूज था जिसने ये बोला था कि वॉज अ जुवेनाइल ऑन द डेट ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस, कि जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन वो इंसान जुवेनाइल था एंड देयरफॉर उसको जे एक्ट में सारे उसकी प्रोसीडिंग्स होने चाहिए एंड नॉट अंडर द आईपीसी। ठीक, इसी पे ही एप्लीकेशन फाइल हुई कि ही वॉज नॉट अ जुवेनाइल ऑन द डेट ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस। अब कोर्ट ने क्या पाया, कोर्ट ने कहा कि हाँ ही वॉज नॉट, यहाँ पे that he was not a juvenile at the time of commission of the offense। जो भी evidences होते हैं उससे ये प्रूफ नहीं होता है। उसके अलावा कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड very very correct. Before we close this matter, we would like to observe that the rising rate of juvenile delinquency in India is a matter of concern and requires immediate attention। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, ठीक है ये इंसान जुवेनाइल नहीं था, ये एक बात हुई, लेकिन जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है इंडिया में वो बहुत बढ़ रही है। There is a school of thought existing in our country that firmly believes that howsoever the heinous a crime may be it a single rape, gang rape, drug peddling or murder, if the accused is a juvenile, he should be dealt with keeping in mind one thing, that is a goal of reformation। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे हमारे यहाँ बहुत लोग हैं कंट्री में जिनका ये मानना है, जिनका थॉट ये है, प्रिंसिपल ये है कि एक जुवेनाइल 18 साल के नीचे का इंसान चाहे जितना ग्रूसम भी उसने क्यों ना कोई क्राइम किया हो, उसको हम लोग को एक ही चीज़ के मद्देनज़र रखते उसको ट्रीट करना चाहिए है, उसे हैंडल करना चाहिए है, उसे सज़ा देनी चाहिए है, विच इज़ गोल ऑफ रेफॉर्मेशन। तो हम लोग का गोल क्या होना चाहिए कि वो जुवेनाइल रिफॉर्म हो, ये नहीं कि उसको पनिशमेंट मिले, ये कि वो एक बेहतर अडल्ट बने एंड ही शुड नॉट बी द सेम पर्सन व्हेन ही लीव्स द द क्रिमिनल सिस्टम, द जस्टिस सिस्टम। The school of thought we are talking about believes that the goal of reformation is ideal। उन लोग का क्या मानना है कि गोल ऑफ रिफॉर्मेशन आइडियल है, ठीक है, हम लोग को हर किसी को रिफॉर्म करना चाहिए और जुवेनाइल्स को तो रिफॉर्म ही करना चाहिए। The manner in which brutal and heinous crimes have been committed over a period of time by juveniles and still continue to be committed makes us wonder whether the Act of 2015 had subverted its object। कोर्ट ये कह रहा है कि इसी आइडिया पे बेस्ड है हमारा जे एक्ट ऑफ 2015 कि भाई गोल होना चाहिए रिफॉर्मेशन का और जो भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो जाता है हम लोग उसको रिफॉर्म करेंगे। मगर ये जो क्राइम्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, जो जुवेनाइल्स क्राइम कर रहे हैं और जितने हीनियस क्राइम्स कर रहे हैं द रेट इज़ ओनली इंक्रीजिंग। तो क्या ये 2015 का जो एक्ट है इसने अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया है? डू यू थिंक दैट द एक्ट इज सर्विंग द पर्पस? क्या कोई रिफॉर्मेशन हो रहा है एक्चुअली में? We have started gathering an impression that the leniency with which the juveniles are dealt with in the name of goal of reformation is making them more and more emboldened in indulging in such heinous crimes। तो कोर्ट ये कह रहा है कि जो जो जुवेनाइल्स हैं उनको लीनियंटली डील किया जाता है, उनको उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कि हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, जेल में नहीं रखा जा सकता, पुलिस ऑफिसर्स नहीं आसपास होते हैं इन दैट वर्दी पुलिस ऑफिसर्स की, कोर्ट का सेटअप अलग तरह से होता है, बहुत कुछ होता है जिससे कि भाई उनके दिमाग पे कोई ऐसा इंप्रेशन ना पड़े जिससे कि वो रिफॉर्म हो जाए। लेकिन ये जो पूरी लीनियंसी हो रही है इसके वजह से रिफॉर्म, जो रिफॉर्मेशन का गोल है उसके नाम पे एक्चुअली में वो लोग सिर्फ और सिर्फ और हीनियस क्राइम्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर ही निकल जाता है, अच्छा हम तो जुवेनाइल हैं, हमें तो वैसे भी कम सज़ा मिलेगी, तो लेट मी डू वट एवर क्राइम आई वॉन्ट, क्योंकि हमें उतनी सज़ा तो मिलनी ही नहीं है। इवन इफ आई मर्डर समबडी आई विल नॉट बी गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट और आई विल नॉट इवन बी गिवन अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट? तो कोर्ट ये कह रहा है कि इस चीज़ को दे आर यूजिंग इट काइंड ऑफ। It is for the government to consider whether its enactment of 2015 has proved to be effective or something still needs to be done in the matter before it is too late in the day। तो कोर्ट ये कह रहा है कि ये देखना चाहिए आप गवर्नमेंट को
कि 2015 का जो एक्ट बना था, क्या ये किसी काम का है? इज़ इट सर्विंग द पर्पस? क्या ये रिफॉर्म कर रहा है किसी को? और ये बात देखनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर जो हम लोग के क्रिमिनल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जुवेनाइल्स, और मोस्ट ऑफ द जुवेनाइल्स बिकम डेलिंक्वेंट। इससे पहले हम लोग को ये चीज़ देखनी चाहिए एंड वी शुड वर्क अपॉन इट. So that's all. That was the current affairs for the legal side of us. And all the best for your exams. Thank you very much and see you again. Bye bye.